دوستو ذرا ایسی زندگی کا تصور کریں جہاں آپ موبائل ہاتھ میں لے کر کسی کے ایک میسج کے محتاج نہ ہوں، جہاں آپ کی صبح کسی کے جواب سے شروع نہ ہو اور رات کسی کی خاموشی پر ختم نہ ہو۔ ایک ایسی زندگی جہاں آپ ہر لمحہ یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کر رہے ہوں کہ آپ اہم ہیں، جہاں آپ کو کسی کی توجہ مانگنی نہ پڑے اور نہ ہی کسی کے موڈ پر اپنی قدر تولنی پڑے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ برسوں سے آپ نے خود کو تھکا دیا، آپ نے اپنی حدیں بار بار توڑی، اپنی ترجیحات کو خاموشی سے قربان کیا اور اپنی زندگی کسی اور کے وقت، کسی اور کی سہولت، کسی اور کی مرضی کے مطابق ڈھال دی، اور نتیجہ آپ رشتے میں موجود تو رہے مگر نظر انداز ہوتے گئے۔ آپ کی قربانیاں استعمال ہوئی مگر محسوس نہ کی گئیں۔ آپ کی موجودگی عادت بن گئی اور عادت کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ یہ وہ درد ہے جو شور نہیں مچاتا مگر اندر ہی اندر انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ پھر ایک دن کوئی لڑائی نہیں ہوتی، کوئی ڈرامہ نہیں ہوتا، بس اندر کہیں ایک خاموش سا بٹن دب جاتا ہے اور آپ رک جاتے ہیں، نہ سزا دینے کے لیے نہ بدلہ لینے کے لیے بلکہ خود کو مزید ٹوٹنے سے بچانے کے لیے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سب کچھ بدلنا شروع ہوتا ہے۔ وہ شخص جس نے آپ کو معمول سمجھ لیا تھا اچانک آپ کی کمی محسوس کرتا ہے، وہ سوچنے لگتا ہے، وہ الجھنے لگتا ہے اور پھر وہ آپ کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی خود کو غیر اہم، نظر انداز یا جذباتی طور پر اکیلا محسوس کیا ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم اس نفسیاتی سچ کو بے نقاب کریں گے جو بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ اکثر لوگ آپ کی قدر تب کرتے ہیں جب آپ ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں پارٹ 1، نظر انداز ہونے کا درد۔ آئیے خود سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اور سچ کا سامنا کریں۔ وہ لمحہ یاد ہے جب آپ نے اپنی مصروفیت، اپنے مسائل، اپنی تھکن سب ایک طرف رکھ دی صرف اس لیے کہ وہ آپ کے لیے وقت نکال سکیں، اور جواب میں ایک سادہ سا میسج، آج ممکن نہیں، بعد میں دیکھتے ہیں۔ نہ معذرت، نہ احساس، نہ یہ سوچ کہ آپ نے کیا کھویا۔ یا وہ لمحہ جب آپ نے کسی خوشی کی بات کی، کسی کامیابی کا ذکر کیا اور سامنے والے نے بس سر ہلایا اور بات دوبارہ اپنے مسئلوں، اپنی کہانی، اپنی ذات کی طرف موڑ لی۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں انسان خاموشی سے پیچھے ہٹنا شروع کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ ایک انسان کم اور ایک سہارا زیادہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کی موجودگی ضرورت بن جاتی ہے اور ضرورت کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ نفسیات اس کیفیت کو کنٹینجنٹ سیلف ورتھ کہتی ہے، یعنی آپ اپنی قدر کسی اور کی توجہ، کسی اور کی منظوری، کسی اور کے رویے سے ناپنے لگتے ہیں۔ ان کی توجہ ملے تو آپ خود کو قیمتی سمجھتے ہیں، ان کی لاپرواہی ہو تو آپ اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتے ہیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ خود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جتنا زیادہ آپ جھکتے ہیں، اتنا ہی سامنے والا آپ کو ہلکا لینے لگتا ہے۔ آپ تھک جاتے ہیں، آپ اپنی آواز کھو دیتے ہیں، آپ خود کو بھول جاتے ہیں، اور ایک دن آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کسی کے شریک حیات نہیں، کسی کے محبوب نہیں، بلکہ صرف ایک سروس پرووائیڈر ہیں۔ اور یہ سچ جتنا تلخ ہے اتنا ہی ضروری بھی ہے۔ جب تک آپ خود کی عزت نہیں کریں گے کوئی اور بھی نہیں کرے گا۔ پارٹ 2، موڑ کا لمحہ، ٹرننگ پوائنٹ۔ ہر اس انسان کی زندگی میں جو حد سے زیادہ برداشت کرتا ہے، جو خود کو بار بار نظر انداز ہونے دیتا ہے، ایک دن ایسا آتا ہے جب اندر کچھ ٹوٹتا نہیں بلکہ جاگ جاتا ہے۔ یہ کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہوتا، کوئی چیخ پکار نہیں ہوتی، کوئی آخری وارننگ نہیں دی جاتی، بس اندر کہیں ایک خاموش سی کلک ہوتی ہے، بس اب کافی ہے۔ شاید وہ تیسری بار آپ کی اہم تاریخ بھول جاتے ہیں اور اس بار بھی آپ کو غصہ نہیں آتا، بس ایک عجیب سی تھکن محسوس ہوتی ہے، اور کسی دن شاید ایک معمولی سا جملہ جو انہوں نے مذاق میں کہا آپ کو اچانک آپ کی اصل حیثیت دکھا دیتا ہے۔ یا شاید ایک دن آئینے میں خود کو دیکھ کر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ سامنے کھڑا شخص وہ نہیں جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ آنکھوں میں اعتماد کم، چہرے پر انتظار زیادہ، اور دل میں ہمیشہ کسی کی منظوری کی طلب۔ اسی لمحے ایک سچ سامنے آتا ہے، آپ کی حکمت عملی غلط تھی۔ جو رشتہ پہلے ہی لیک کر رہا ہو، جو انسان پہلے ہی آپ کی قدر نہ جانتا ہو، اس میں خود کو مزید جھونک دینے سے کچھ بہتر نہیں ہوتا۔ جو بالٹی پہلے ہی سوراخوں سے بھری ہو، اس میں اور پانی ڈالنے سے وہ کبھی نہیں بھرتی۔ یہ احساس تکلیف دیتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایک پرانی خوش فہمی بھی ٹوٹتی ہے۔ شاید اگر میں تھوڑا اور صبر کروں، تھوڑا اور جھک جاؤں تو وہ شاید بدل جائیں، لیکن یہی لمحہ آپ کی غلامی کا نہیں، آپ کی آزادی کا اعلان ہوتا ہے۔ اسی دن آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں جو سب سے مشکل بھی ہے اور سب سے ضروری بھی۔ میرا سکون کسی کی منظوری سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔
पार्ट 3 हकीकतन परवाह करना छोड़ना कैसे सीखें। आइए एक बात बिल्कुल साफ कर लें, ये भेस बनने का सफर नहीं है, ये सर दिल होने की तरबियत नहीं है और ना ही लोगों को सजा देने का कोई खुफिया मंसूबा है। ये दरअसल अपनी तवानाई को अंधाधुंध लुटाने से रोकने का अमल है। क्योंकि मसला ये नहीं था कि आप बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, मसला ये था कि आप गलत जगह गलत लोगों पर और अपनी कीमत पर मोहब्बत करते थे। हकीकतन परवाह करना छोड़ना उस लम्हे शुरू होता है जब आप ये समझ लेते हैं कि हर कोई आपकी कुर्बानी के काबिल नहीं। यहाँ हम 5 ऐसे अमली कदम देखेंगे जो आपको ऐसा ऐसा जज्बाती गुलामी से खामोश ताकत की तरफ ले जाते हैं। स्टेप 1, अंदरूनी तौसीक पैदा करें। सबसे पहले आपको एक तलख सच कबूल करना होगा। अगर आप खुद अपनी कदर नहीं मानते तो कोई और जिंदगी भर मानने वाला नहीं। असल मसला ये नहीं है कि लोग आपको कम समझते हैं, असल मसला ये है कि आपने खुद को दूसरों के रवैये के तराजू में रख दिया है। वो जवाब दे दें तो आप खुद को कीमती समझते हैं, वो नजरअंदाज कर दें तो आप अंदर ही अंदर बिखर जाते हैं। ये आदत खामोशी से आपकी शख्सियत को खा जाती है और यही सबसे खतरनाक ज़हनी कैद है। अंदरूनी तौसीक का मतलब ये है कि आप अपनी तारीफ किसी की मौजूदगी के बगैर करना सीखें। तालियां ना हो, तारीफ ना हो, तब भी आप खुद को सराह सकें। रोज कम से कम 3 चीजें लिखें जिन पर आप खुद को क्रेडिट दे सकते हैं। कोई बड़ा कारनामा जरूरी नहीं, आज मैंने अपनी हद पर समझौता नहीं किया, आज मैंने खुद को नजरअंदाज होने से बचाया है, आज मैंने अपनी बात दबाए बगैर कही। ये सादा सा अमल आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग को तरबियत देता है कि आपकी कदर किसी के मूड, किसी के जवाब या किसी की मंजूरी की मोहताज नहीं। याद रखें, जो इंसान खुद अपनी अहमियत जान लेता है वो फिर कभी भीख मांगने वाली मोहब्बत कबूल नहीं करता। स्टेप 2, खुद से हमदर्दी करें। एक तलख हकीकत तस्लीम करें, जिंदगी में आपने जितना किसी और को माफ किया उतना खुद को कभी माफ नहीं किया। आप हमेशा खुद के लिए सबसे सख्त जज बने रहे हैं। गलती हुई, खुद को कोसा, नजरअंदाज किया गया, खुद को इल्जाम दिया, रिश्ता खराब हुआ, खुद को नाकाम समझा। ये रवैया आपको मजबूत नहीं बनाता बल्कि अंदर से कमजोर करता है। ये आपकी तवानाई चुराता है और आपको जज्बाती गुलामी में रखता है। खुद से हमदर्दी का मतलब है कि आप खुद को इंसान माने, मशीन नहीं। आपके जज्बात, आपकी कमजोरियां, आपके गलत फैसले इंसान होने का हिस्सा है, जुर्म नहीं। जब कुछ गलत हो जाए तो खामोशी से खुद से कहें, मैं नाकाम नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं नाकाम नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ। ये नरमी आपको कमजोर नहीं बनाती, ये आपको अंदर से नाकाबिले शिकस्त बनाती है। क्योंकि जब आप खुद को संभालना सीख जाते हैं तो कोई भी शख्स आपकी लापरवाही या सर्द रवैये से आपको तोड़ नहीं सकता। आपकी जज्बाती ताकत अब किसी की मंजूरी या रवैये की मोहताज नहीं रहती। ये वो बुनियाद है जो हकीकी आजादी और खुद एतमादी की तामीर करती है। स्टेप 3, तसल्ली मांगना कम करें। हर बार जब आप क्या सब ठीक है, मैंने गलत तो नहीं कहा, आप नाराज तो नहीं, मेरी बात बुरी तो नहीं लगी, ये सवालात पूछते हैं तो ये किसी के लिए नहीं बल्कि आप खुद से पूछ रहे होते हैं। और हर बार आप अपने दिमाग को ये पैगाम देते हैं, मुझे खुद पर भरोसा नहीं। ये सबसे खतरनाक आदत है। जो इंसान बार बार तसल्ली मांगता है वो लाशऊरी तौर पर अपनी ताकत किसी और के हाथ में दे देता है। ये रवैया जज्बाती गुलामी पैदा करता है। आपकी खुशी किसी और के जवाबदेही पर मुनसर हो जाती है। सच ये है कि ताकतवर इंसान वो है जो खामोश रहना जानता है, जो अपनी दुनिया के फैसले अपनी समझ से करता है। अगर आपने दिल साफ रखा, हदूद कायम की और अपनी जगह पर मजबूत खड़े रहे तो किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। याद रखें, खामोश एतमाद जो अंदर से पैदा होता है चीख चीख कर मांगी गई तसल्ली से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। ये वो ताकत है जो आपको किसी की तवज्जो या कबूलियत की मोहताज नहीं रहने देती और आपको अपने जज्बात का हकीकी मालिक बना देती है। स्टेप 4, अपनी जिंदगी के मकासद बनाएं। सबसे खतरनाक लम्हा वो होता है जब आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक रिश्ते के गिर्द घूमने लगे। तब आप इंसान नहीं रहते बल्कि एक ऑप्शन बन जाते हैं। कोई भी आपको जरूरत से ज्यादा अहमियत नहीं देता क्योंकि आपने खुद अपनी दुनिया सिर्फ उसी एक शख्स के लिए महदूद कर दी है। याद रखें, आपकी जिंदगी किसी एक शख्स से कहीं बड़ी है, इसलिए जरूरी है कि आप ऐसे मकासद बनाएं जो सिर्फ आपके लिए हों, जिनका ताल्लुक किसी और की पसंद या रद्द अमल से न हो। कोई नया हुनर सीखें, अपनी सेहत पर भरपूर तवज्जो दें, अपने काम और करियर में खुद को बेहतर बनाएं। ये सब आपकी शख्सियत को मजबूत करते हैं और आपको एक मुकम्मल इंसान बनाते हैं, ना कि किसी का सहारा या भरोसा। जब आपकी जिंदगी भरने लगती है तो दूसरों की गैर मौजूदगी या लापरवाही कमजोर करने के बजाय आपको आजाद और मजबूत करती है। याद रखें, जो इंसान अपनी जिंदगी को भरपूर बनाता है वो कभी खाली रिश्तों या कम अहम लोगों की तलाश में नहीं रहता। उसकी तवनाई और तवज्जो खुद पर मरकूज होती है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है।
स्टेप 5, हदूद मुकर्रर करें। सबसे पहले ये समझ लें कि हदूद का मतलब किसी को दूर धकेलना नहीं है और ये दीवारें खड़ी करने के मुतरादिफ भी नहीं। हदूद का मतलब है अपनी इज्जत, अपनी तवानाई और अपनी नफ्सियाती हिफाजत करना। अगर कोई बार बार आपको आखिरी तरजीह देता है या आपकी कदर नहीं करता तो आपका काम है खामोशी से पीछे हटना। कोई बड़ी वजाहत, कोई मनफी रद्द-ए-अमल, कोई ड्रामा नहीं। असल ताकत हदूद के ऐलान में नहीं बल्कि उनके नफाज में है। जब आप खामोशी से अपनी हदूद पर कायम रहते हैं तो ये एक वाज़ेह पैगाम भेजता है, मैं काबिल एहतराम हूँ और मुझे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अगर कोई बार बार इन हदूद को तोड़े तो याद रखें, पीछे हटना कमजोरी नहीं, ये सबसे ताकतवर जवाब है। ये अमल आपकी खुद एतमादी को मुस्तहकम करता है और आपको जज्बाती तौर पर आजाद बनाता है। यही वो नरमी है जो सख्त नजर आती है और यही वो खामोश ताकत है जो आपको किसी की तवज्जो या मंजूरी की मोहताज नहीं रहने देती। याद रखें, हदूद बनाने वाला शख्स कभी गुलाम नहीं बनता और खामोशी से अपनी जगह बरकरार रखने वाला सबसे मजबूत इंसान होता है। पार्ट 4, पैराडॉक्सिकल चेज, उल्टा ताक़ुब। जब आप अपनी तवनाई और तवज्जो खुद पर मरकूज करना शुरू करते हैं तो एक अजीब सा मंजर पैदा होता है। सामने वाला अचानक आपकी गैर मौजूदगी महसूस करने लगता है, हालांकि आप अभी भी वहाँ मौजूद हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप अब आसानी से दस्तयाब नहीं, आपकी हर हरकत उनके ताबे नहीं। और नफ्सियात कहती है कि जो चीज नायाब हो हमेशा ज्यादा कीमती लगती है। यहाँ का राज ये है कि आपका एतमाद अब बनावटी नहीं बल्कि हकीकी और गैर मशरूत है। आप अपनी कीमत के लिए भीख नहीं मांगते, आपकी मोहब्बत, आपकी तवज्जो अब आपकी अपनी बुनियाद पर कायम है, किसी के रवैये या रद्द-ए-अमल की मोहताज नहीं। सबसे अहम बात, आप उनके जज्बाती हथकंडों और खेलों से आजाद हो जाते हैं। अब वो जो कभी आपको कंट्रोल करने के लिए अपनी लापरवाही या दूरी का हथियार इस्तेमाल करते थे वो नाकाम हो जाता है। आपकी पुरसकून और गैर मोहताज मौजूदगी उनके लिए गैर मुतवक्को और नाकाबिले काबू हो जाती है। नतीजा क्या होता है? मैसेजेस अचानक बढ़ने लगते हैं, कॉल्स आने लगती हैं और वो वही कोशिशें करने लगते हैं जो पहले कभी नहीं की थी। ये सब कुछ महज इत्तफाक नहीं, ये इंसानी नफ्सियात के एक असूल है। जब आप अपनी कदर खुद जान लेते हैं तो दूसरों के लिए आपकी कदर कुदरती तौर पर बढ़ जाती है। ये उल्टा ताक़ुब है, ये रिवर्स चेजिंग है। जब आप बेपरवाह हो जाते हैं तो लोग खुद ब खुद आपके पीछे आने लगते हैं। ये वो लम्हा है जब आपकी हकीकी ताकत और आजाद मिजाजी सबसे वाज़ेह नजर आती है। दोस्तों, लेकिन सबसे पहले ये बात याद रखें, मकसद किसी को मजबूर या पीछे लगाने का नहीं है। ये खेल इंतकाम या ज़हनी खेल नहीं। असल मकसद ये है कि आप अपने साथ इतना मजबूत, मुस्तहकम और प्यारा रिश्ता बना लें कि किसी की मंजूरी या तौसीक सिर्फ एक इजाफी चीज बन जाए, जरूरत नहीं। जब आप वाकया बेनियाज हो जाते हैं तो सबसे बड़ी ताकत आपके हाथ में आ जाती है, इंतखाब की ताकत। अब आप खुद फैसला करते हैं कि कौन आपकी जिंदगी के काबिल है और कौन सिर्फ वक्ती तस्कीन या आर्जी ताल्लुक है। ये आजादी आपको साफ नजरिया देती है जो पहले कभी मुमकिन नहीं था। अब आप किसी के रवैये या रद्द-ए-अमल के मोहताज नहीं है और ये आजादी आपके अंदरूनी सुकून की बुनियाद है। याद रखें, आपकी कदर कभी भी किसी और के फैसले या रवैये की मोहताज नहीं थी। ये आपके अंदर से है, ये आपके अंदर है, ये आपकी शनाख्त है, ये आपकी गैर मशरूत ताकत है। अब सवाल ये है कि आप इस ताकत को कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्या आप अपनी जिंदगी में इन रिश्तों को रखेंगे जो आपकी कदर करते हैं या उनको छोड़ देंगे जो सिर्फ आपकी तवानाई का इस्तेसाल करते हैं? आज कमेंट में लिखें, इस हफ्ते आप खुद के लिए कौन सा एक कदम उठाएंगे? क्या आप खुद पर तवज्जो देंगे, अपनी कदर पहचानेंगे या अपनी हदूद कायम करेंगे? याद रखें, आपकी कहानी न सिर्फ आपको मजबूत बनाती है बल्कि किसी और के लिए भी रोशनी, सबक और ताकत बन सकती है। अब वक्त है कि आप खुद के सबसे बड़े हामी बने। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।